Good morning students, myself Amandeep Singh Randhawa, faculty of Axis Colleges. So my today topic is semi-solid dosage form. It also comes under a category of different dosage forms. In my last videos I have discussed about solid dosage forms, different liquid dosage forms. In this video I will discuss about semi-solid dosage forms. Now what are semi-solid dosage forms? As the name suggests, the dosage form is neither liquid nor solid. It's in between liquid or solid. That's why it's called semi-solid dosage forms. Now if we talk about topically semi-solid dosage forms, examples are ointments, pastes, gels, creams. Creams again very vast classification is there. So many creams are there. We will talk about in this video. They may be medicated or non-medicated. Medicated means it has some therapeutic value. If a product says some medicated value, means it is treating some sort of disease, right? And non-medicated is used for protective action, emollient action, right? Maintains the moisture of skin. This type of actions comes under the category of non-medicated. Now, according to the site of applications of semi-solid dosage forms, again, so many set of applications, like topically to the skin, of course, the semi-solid dosage form when applied topically on the skin, it will come under the category of topically semi-solid dosage forms. When the semi-solid dosage form applied in mucous membranes, right? Mucous membranes like placed on the eye surface, nasal mucosa, ear mucosa, vagina or anus. So these are the sites of mucous membranes or body cavities, we also say. Then intended use may be local or systemic. Semi-solid dosage form gives local effect as well as systemic effect. Local effect means treatment of dermal disorders. When it is applied topically, confined एक जगह पे रहता है effect इसका, that is local effect. Systemic, when the drug goes into the blood circulation, mixed with the blood, goes into the blood, and from blood it goes all over the body, then the effect is called systemic effect. Now what are the various ideal properties of semi-solid dosage form, right? एक परफेक्ट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए? लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज. स्मूथ टेक्सचर. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मस्ट हैव अ स्मूथ टेक्सचर. टेक्सचर मीन्स while on application on the skin or in the mucous membrane, on the mucous membrane, it may not have any gritty particles or small particles which may cause irritation to the skin, to the site of application, right? The texture should be smooth. Then elegant in appearance. अपील अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, परफेक्ट लगना चाहिए. ये नहीं कि फेस अलग अलग हो गए, दो फेस अलग हो गए, लिक्विड अलग, सॉलिड अलग, तो देखने में एलिगेंसी होनी चाहिए. नॉन डिहाइड्रेटिंग. देखो, वर्ड इज हाइड्रेटिंग और डिहाइड्रेटिंग. हाइड्रेटिंग मीन्स मेंटेन्स द मॉइस्चर लेवल ऑफ द स्किन. If we are applying any cream topically on the skin, it must have property of hydrating the skin. Moisture level maintain रहना चाहिए स्किन का. अगर नहीं मेंटेन किया, स्किन ड्राई हो गई, तो इसका मतलब डिहाइड्रेटिंग हो गया. तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसकी? डिहाइड्रेटिंग ना हो. डिहाइड्रेटिंग जैसे एग्जांपल है इसका अल्कोहल. आप कोई सैनिटाइज़र यूज़ करते हो, उसमें अगर अल्कोहल है तो क्या होता है? स्किन पे लगाया, अगर उसमें कोई ह्यूमेक्टेंट नहीं है, कोई मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के लिए नहीं डाला गया, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा उसमें नहीं डाला है किसमें? सैनिटाइज़र में, तो उसको लगाने के बाद क्या महसूस होता है? स्किन ड्राई हो गई. स्किन ड्राई क्यों हो जाती है? बिकॉज अल्कोहल इज़ डिहाइड्रेटिंग. मॉइस्चर लेवल वो उड़ा देगा. तो एक आइडियल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि मॉइस्चर लेवल मेंटेन करके रखे स्किन का. ठीक. ऑफ कोर्स नॉन ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज इट विल कॉज इरिटेशन टू द साइट ऑफ एप्लीकेशन. नॉन ग्रीसी एंड नॉन स्टेनिंग.
नॉन ग्रीसी मीन्स ऑयली ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेनिंग का मतलब होता है दाग वगैरह लग जाए, क्रीम लगाई, क्रीम हटी तो देखा पीछे दाग रह गया, पर्पल कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, है ना। तो ऐसे कोई भी कलर नहीं आना चाहिए, इट शुड बी नॉन स्टेनिंग, कोई कलर नहीं आना चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक ऑल्सो, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत ड्राई है, मॉइस्चर लेवल उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए इसमें। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग, कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए लगाने के बाद। कोई भी आप सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म टॉपिकली ऑन द स्किन लगा रहे हो, चाहे आप म्यूकस मेम्ब्रेन में लगा रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं होना चाहिए। it have to be miscible with skin secretions, skin secretions like sweat, sebum। हमारी स्किन से क्या निकलता है? स्वेट निकलता है, थ्रू स्वेट पोर्स सीबम निकलता है, ठीक है। तो जो हमने टॉपिकली क्रीम लगाई है वो इसमें मिक्स हो जाए, किसमें? आपके स्वेट में भी और सीबम में भी, ठीक है। तो इजीली मिसिबल होना चाहिए, ये नहीं कि फेस अलग अलग हो गया, आपने क्रीम लगाई, स्वेट आया, क्रीम अलग, स्वेट अलग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो हमारी स्किन के जो सिक्रीशन है, जैसे स्वेट है, उसमें मिक्स होना चाहिए, मिसिबल होना चाहिए आप सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को। हैव लो सेंसिटाइजेशन इफेक्ट, सेंसिटाइजेशन इफेक्ट जैसे एलर्जी हो गई, है ना, रेडनेस आ गई स्किन में, किसी की सेंसिटिव स्किन है तो जो है उसमें एलर्जी कॉज हो सकती है। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मार्केट में निकालने से पहले आपको ये सब चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी कि जो है कोई भी सेंसिटाइजिंग कॉज नहीं होने चाहिए। रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इरिटेशन, प्रूराइटिस, तो ये सब नहीं होना चाहिए, तब एक आइडियल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बनता है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, easily applicable with efficient drug release and high aqueous washability. After application, if we want that इसको वाइप ऑफ कर दें, वॉश कर दें, तो वो ईजिली हो जाना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक आइडियल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में, तब जाके वो बनता है। पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन, क्योंकि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स मोस्टली टॉपिकली लगाई जाती हैं, ऑन द स्किन लगाई जाती हैं, अभी हम बात करेंगे। तो वो किसी किसी का मेडिकल इफेक्ट है, किसी किसी का नॉन मेडिकल इफेक्ट है। मेडिकल इफेक्ट तभी होगा जब वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा, ब्लड में जाके मिक्स होगा, तब वो अपना मेडिकल इफेक्ट देगा। तो स्किन में कैसे पेनिट्रेट कर जाता है, तो वो समझने से पहले थोड़ा स्किन का एनाटॉमी समझ लेते हैं कि स्किन के अंदर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कैसे पेनिट्रेट करेगा। देखो, इट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्किन। स्किन में हमारी 3 लेयर्स हैं बेसिकली। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस, थर्ड इज सबक्यूटेनियस लेयर और हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर है, इट अगेन डिवाइड इनटू 5 लेयर्स लाइक कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसेल, है ना। वो तो चलो अलग चीज़ हो गई। तो ये जो एपिडर्मिस है, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव एक्शन दे रही है हमारी बॉडी, ठीक है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डर्ट, डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उससे हमारी सेफ्टी कर रही है एपिडर्मिस लेयर। ऑफ कोर्स जो बेसल लेयर है एपिडर्मिस की, उसको जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ वुंड। अगर हमारी स्किन में कोई कट वगैरह लग जाता है तो हमारी स्किन हीलअप कर जाती है। कैसे हीलअप कर जाती है, कैसे जख्म भर जाता है? ड्यू टू जर्मिनेटिवम लेयर दैट इज बेसल, इट्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। एक्सक्यूज मी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। नाउ हमारे टॉपिक में जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें डर्मिस इज इंपॉर्टेंट। तो डर्मिस में क्या है? डर्मिस में ब्लड सप्लाई है, डर्मिस में न्यूरॉन की सप्लाई है, डर्मिस में हेयर बल्ब है, डर्मिस में सीबेसियस ग्लैंड्स भी हैं, सब कुछ डर्मिस में है, ठीक है। हाइपोडर्मिस इट्स मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यूज, फैटी लेयर है, उसके नीचे फिर मसल लेयर आ जाएगी, राइट। तो ये क्रॉस सेक्शन है स्किन का। अब जो है हमारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म स्किन में कैसे पेनिट्रेट कर जाती है, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। 3 रूट होते हैं। पहला रूट है हेयर फॉलिकल का। देखिए ये हेयर फॉलिकल है, दीज आर हेयर्स। अगर हम अंदर देखें तो हेयर बल्ब है, यहाँ से हेयर्स बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। तो हमने कोई सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म टॉपिकली लगाई,
वो हमारी स्किन के अंदर कैसे चलेगी? थ्रू द पोर्स ऑफ हेयर फॉलिकल। सेकेंड, थ्रू स्वेट पोर्स। ये देखिए, ये स्वेट पोर्स हैं, दीज आर स्वेट पोर्स। इसके थ्रू भी क्रीम हमारी अंदर चली जाएगी। तीसरा रूट क्या है? तीसरा रूट है इन बिटवीन हेयर एंड स्वेट पोर्स। दिस इज द वेरी इंटैक्ट लेयर। ये लेयर बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं से कटी नहीं है, कोई कटा फटे का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट स्किन है। इसके थ्रू भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म पेनिट्रेट कर सकती है, अंदर जा सकती है थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, तो 3 रूट हैं जिसके कि जो है हमारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म स्किन के अंदर जा सकती है। ठीक है, दीज आर द सर्टन फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द स्किन पेनिट्रेशन, लाइक फिजिको केमिकल फैक्टर। इसमें आपका हाइड्रेशन आ जाएगा। स्किन जितनी हाइड्रेट रहेगी उतना पेनिट्रेशन आपका फास्ट रहेगा। टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी जैसे बढ़ेगा तब भी फास्ट पेनिट्रेशन हो जाएगा। पीएच है कि अगर आपकी ड्रग अनआयोनाइज्ड है तो उसका पेनिट्रेशन फास्ट रहेगा। मॉलिक्यूलर साइज है, अगर आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का मॉलिक्यूलर साइज जितना छोटा होगा उतना पेनिट्रेशन फास्ट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। हमें एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या चाहिए अदर देन API? So these are the certain excipients which are used in the formulation of semi-solid dosage forms. Very first is bases. 4 bases are there which are used to formulate any semi-solid dosage forms. Very first is oleaginous base. Oleaginous base like paraffins, liquid paraffin, solid paraffin, right? So all the paraffins, these mineral source है, ज़मीन के अंदर से मिलता है हमें paraffins, तो ये इट विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ ओलियाजिनस बेस। फैट डिजॉल्विंग है, वाटर डिजॉल्विंग बिल्कुल भी नहीं है। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ बेस विल बी एब्जॉर्बेबल बेस। एब्जॉर्बेबल बेस ये भी लिपिड होता है मगर इसकी एक क्वालिटी होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की। एग्जाम्पल इसका है वूल फैट एंड बीज वैक्स। ठीक है, होता ऑयली है मगर चूँकि नेचुरल है तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इट विल स्वेल, है ना। थर्ड कैटेगरी है बेस की इमल्सिफाइबल बेस, लाइक इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट इज देयर। फोर्थ कैटेगरी इज वाटर डिजॉल्विंग बेस लाइक ग्लिसरीन, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये आ जाएंगे आपके वाटर डिजॉल्विंग बेस में। तो जैसा हमें फॉर्मुलेशन बनाना है अकॉर्डिंग टू एनी फार्माकोपिया, इट मे बी BP, IP, USP वट, तो जैसा हमें फॉर्मुलेशन बनाना है उस फॉर्मुलेशन में अगर हम कोई भी फार्माकोपिया फॉलो कर रहे हैं उसमें जो फार्मूला उन्होंने दिया है तो बेस कौन सा यूज़ करना है तो हम बेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी हम इसमें डालते हैं विच विल इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, लाइक बेंजलकोनियम क्लोराइड है, इथाइल बेंजोएट है। ह्यूमेक्टेंट्स का मतलब होता है विच विल मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द डोसेज फॉर्म, लाइक ह्यूमेक्टेंट्स में आ जाएंगे आपके ग्लिसरीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल्स आ जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स, इट विल रिड्यूस द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। इमल्सिफायर, जेलिंग एजेंट्स में आ जाएंगे आपके पैक्टिन है, जेलेटिन है, स्टार्च, सोडियम अल्जीनेट। सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ जेलिंग एजेंट्स। जैसा डोसेज फॉर्म हमें बनाना है हमारे पास वैसे वैसे एग्जांपल्स हैं। सॉल्ट्स, परमिएशन इन्हेंसर, इट विल हेल्प इन द permeation means to pass through, it will help in the permeation of semi solid dosage form across the skin, right? Certain buffers, perfumes, so these are the list of the various excipients used in the formulation of semi solid dosage forms. So let's talk about ointments. Ointment is the semi solid preparations meant for topical एज वेल एज म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 साइट ऑफ एप्लीकेशन है इसके। आप इसको टॉपिकली भी लगा सकते हैं जैसे कि एक्सटर्नल है ऑन द स्किन, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में भी इसको लगा सकते हैं जैसे आई ऑइंटमेंट आता है। आई ऑइंटमेंट क्या है, हमें आंख के अंदर उसको लगाना है। अदर देन आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, तो उसको हम आंख के अंदर लगाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में लगाते हैं। ठीक है,
So these include the skin and the mucous membranes of the eye, vagina, anus and nose. So these are the roots of certain mucous membranes. Eye, vagina, anus and nose, it will come under category of mucous membrane, and skin comes under category of topical, right? So therapeutically ointments function as skin protective and emollients. जो इसका action है that is protective and emollient. This is an image of ointment. Now classification of ointment based on penetration of skin. स्किन के अंदर कहाँ तक पेनिट्रेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग 3 इसके कैटेगरी हैं ऑइंटमेंट्स की. वेरी फर्स्ट इज एपिडर्मिक ऑइंटमेंट. एपिडर्मिक ऑइंटमेंट ये टॉपिकली रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ऊपर ऊपर रहेगा. दीज ऑइंटमेंट प्रोड्यूस देयर एक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट, नो सिस्टमिक इफेक्ट एट ऑल, दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड. सो those ointments which gives local effect, not systemic effect, it will come under the category of epidermic ointments. Second is endodermic ointments. They are partially absorbed, not fully absorbed, partially absorbed. They can penetrate the skin, but they are partially absorbed. So next category is diadermic ointments. These are systemically absorbed, penetrate across the skin. These ointments release the medicaments that pass through the skin and produce systemic effects, means the ingredients of diadermic ointments mix with the blood. Now let's talk about paste. The difference in ointment and paste, or if we compare paste with other semi-solid dosage form, it is the most viscous semi-solid dosage form. The solid ingredients in paste are of maximum quantity. They contain large amount of finely powdered solids like starch, zinc oxide, etc. So due to the presence of these substances, they have the highest viscosity among all the semi-solid dosage forms. Right? Pastes are the semi-solid preparation meant for, of course, external application to the skin only. Now let's talk about gels. Gels or jellies. Gels are transparent, translucent, non-greasy, semi-solid preparations. Mode of action topically, used externally. जेल बनाने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक है वाटर, दूसरा है जेलिंग एजेंट. जेलिंग एजेंट में भी गम अकेसिया, गम ट्रगाकांत, राइट. आपका पैक्टिन हो गया, जिलेटिन हो गया, द जिलेटिन जिससे कैप्सूल्स के शेल्स बनते हैं, सोडियम अल्जिलेट, और मे बी सेलुलोज डेरिवेटिव सिंथेटिक ऑल्सो. सो टाइप्स ऑफ जेलीज इफ यू टॉक अबाउट, क्लासिफिकेशन बहुत है जेलीज का. तो मेडिकेटेड जेलीज हैं जिनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है, थेरेप्यूटिक वैल्यू है, जैसे स्पर्मिसिडल जेलीज आती हैं. रूट ऑफ एप्लीकेशन इज वजाइना which will kill sperms, so it comes under the category of sort of contraceptives. Then comes lubricant jellies. जैसे कोई भी हम एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, एंडोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है ना. एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है, उसके आगे लाइट है, कैमरा है, बॉडी के अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने से पहले उसका लुब्रिकेशन ज़रूरी होता है, जिससे कि विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो ईजिली अंदर चला जाए स्लिप होकर. तो उसका लुब्रिकेशन किससे करेंगे, lubricant jellies is there, right. Then other categories miscellaneous jellies like patch testing. Patch testing हम करते हैं, कोई भी हमने ड्रग बनाई है तो वो कहीं सेंसिटिव तो नहीं है उस पेशेंट के लिए, एलर्जी कॉज तो नहीं करेगी, इरिटेशन कॉज तो नहीं करेगी, इचिंग प्रोराइटिस कॉज तो नहीं करेगी, रेडनेस कॉज तो नहीं कर देगी स्किन में, तो हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जेलीज भी आती हैं. जैसे किसी का आपको ECG करना है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करना है, एब्डोमेन में लगाया जेली को, इससे क्या होगा, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं वो फास्ट हो जाती हैं इसके लगाने से. दूसरा चीज़ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो जेल्स होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है. सोडियम क्लोराइड अगेन इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इम्पल्स फास्ट कर देगा. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में स्क्रीन में आप इजीली देख सकते हो, ठीक है. सेकंड, इसमें प्यूमाइस स्टोन भी पड़ा रहता है. प्यूमाइस स्टोन का मतलब होता है
कि जो रफनेस स्किन के ऊपर है, जैसे कि तुम्हारे हॉर्नी लेयर है स्किन की, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस बट वी से कॉर्नियम ऑल्सो, तो कॉर्नियम लेयर है उसको हटा देता है, ठीक है, जिससे कि अगेन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अच्छा हो जाता है. सो मेनी टाइप्स ऑफ जेल्स आर देयर. Creams, again vast category of creams. Cream is basically an emulsion of oil in water or water in oil. It depends. So creams are again semi-solid preparations meant for external application to the skin, topically on the skin. They are less greasy and are easy to apply, mainly of two types, oil and water. If we say oil and water, the oil droplets or oil globules are dispersed in a dispersion medium, water. If we talk about water in oil, the water globules are dispersed in a dispersion medium, oil. So this is the category of creams according to the function. जैसा काम वैसी cream available है, like cleansing cream, vanishing cream, foundation cream, hand and body cream, and all-purpose cream. So what are these creams? Let's talk briefly, one by one. So very first is cleansing cream. As the name suggests, it will cleanse something. What? It is used for removal of facial makeup, surface grime, oil. Grime मतलब surface skin पे dust particles आ गए हैं, pollution, pollutants आ गए हैं, oil आ गया है, तो उसको साफ करने के लिए तो हम ये क्लिनजिंग क्रीम यूज़ करते हैं. मेकअप किया है उसको वाइप ऑफ करने के लिए, है ना, ईजिली वॉश ऑफ हो जाए, तो ये क्लिनजिंग क्रीम वी आर यूजिंग. Vanishing cream, as the name suggests, it spreads easily and disappear rapidly after application. तुरंत लगती है और स्किन पे पता भी नहीं चलेगा कि वैनिशिंग क्रीम लगी है, ठीक है. तो लगाने के बाद ये क्या अपने पीछे छोड़ देती है? रेजिडुअल फिल्म, एक रेजिडुअल फिल्म छोड़ देती है जो स्किन के ऊपर इंटैक्ट लगी रहेगी, और इसका एक्शन होता है एंटी पर्स्पिरेंट. पर्स्पिरेशन होता है पसीना, स्वेटिंग, तो उसको रोक के रखती है. मोस्टली हॉट क्लाइमेट्स में ये यूज़ की जाती है जहाँ ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह आती है ना. चेहरे पे आपने लगा ली फेस पे वैनिशिंग क्रीम, बाद में मेकअप वगैरह किया तो स्वेटिंग नहीं आएगी, ना ही मेकअप वाइप ऑफ होगा. नेक्स्ट इज़ फाउंडेशन क्रीम. जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है फाउंडेशन, तो इट्स बेस मेकअप है. मेकअप से पहले जो है इसको लगाया जाता है. ये क्या करती है? उसको होल्ड करके रखती है मेकअप को, जल्दी जल्दी उसको फैलने नहीं देती. So it provides base makeup to hold the powder or other makeup above it. Then next category is hand and body cream. ये कब यूज़ करते हैं? जैसे कि कोई आपने डिटर्जेंट्स वगैरह का या वॉशिंग क्लोथ्स का काम है ना, तो उसमें क्या होता है, स्किन का पूरा मॉइस्चर चला जाता है. जब स्किन का पूरा मॉइस्चर चला जाएगा, स्किन हमारी हाथ की डिहाइड्रेट हो जाएगी. फिर क्या होगा? स्केली हो जाएगी, स्किन में कट्स बन जाएंगे, ब्रूसेस बन जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी. उसके बाद चांसेस होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन के. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरियाज वगैरह का, ठीक है. तो ये सब ना हो, इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं? हैंड एंड बॉडी क्रीम. जैसे कोल्ड और ड्राई इवेंट्स हैं सर्दियों में, अगेन ड्राइनेस कॉज करती है. ड्राइनेस कॉज, जैसे ड्राई होगी स्किन, स्केली हो जाएगी, कट लग जाएंगे उसमें, स्किन ओपन हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी. तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? हमें हैंड एंड बॉडी क्रीम यूज़ करनी है. ये क्या करेगी? ये मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखेगी, जिससे कि हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी और ना ही स्केली होगी. देन कम्स ऑल पर्पस क्रीम. वाई इट इज़ कॉल्ड ऑल पर्पस क्रीम? बिकॉज इट हैज़ so many functions. It may act as cleansing cream, it may act as foundation cream, it may act as also as a cream to smooth the rough surface of the skin, smoothing. So it's having so many functions. That's why the name is all purpose cream. So this is all about the semi-solid dosage forms we have learned today. Thank you.